Assalamu alaikum. Students, today's class is regarding 12th class. It is topic ascariosis. So in previous class we have discussed what filariasis is or what elephantiasis is. Filariasis and elephantiasis was the same name of a particular disease. We have discussed this in previous topic for class 12, and today's topic is again for class 12 zoology, and the topic is ascariosis disease. Ascariosis. So this ascariosis is a disease. It happen in human beings. How it happen in human beings? It is an important topic. It can be asked in the examination. How it happen in human beings? What is the pathogen responsible for this? If this disease occurs in anyone, what are the symptoms and what are the transmission modes, transmitting agents by which this disease spread, and what remains the symptoms and what are the preventive measures and the medicines for this disease. So students, today we are going to discuss about ascariosis. So you must know that this disease, ascariosis, it is caused by a pathogen, by a worm which is known as Ascaris lumbricoides. You have read about this Ascaris lumbricoides in class 12th in phylums, because in that very chapter we have already discussed about roundworms. So this Ascariosis lumbricoides, it is a roundworm, and this is the pathogen, this is the worm which is responsible for this disease ascariosis. So this disease ascariosis, it is caused by Ascaris lumbricoides. It is a common roundworm. It is that roundworm which is very common in every person. Ascaris is an endoparasite of intestines, means it uh, it is an endoparasite. It lives inside the intestines. Endoparasite means any pathogen, anything, any parasite which live in one's internal body, which live in one's internal body. So Ascaris, it is an endoparasite. It lives inside the intestines of the human beings. So that is why we called it as Ascaris is an endoparasite. Endo means which live inside. So it lives inside our intestines. So what happens? Here the eggs of the parasite are released or excreted out along with the feces of infected persons, which contaminate soil, water and vegetables. So I want to make you understood in उर्दू. सो क्या होता है कि अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है, उसके अंदर एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स मौजूद हैं, तो वो एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स इसके अंदर एग्स ले करता है, एग्स देता है. फिर जब वो इंसान बाहर जाता है फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि किसी लेबोरेटरी में, लैट्रिन में जाता है, तो उसके फेसेस के साथ ये एग्स बाहर आते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस चलाई थी, एक मूव चलाया था कि वी शुड क्लोज डाउन ऑल द ड्राई लैट्रिन्स, कि जहाँ कहीं भी ड्राई लैट्रिन्स हों उनको क्लोज़ किया जाए. क्योंकि जब कोई इंसान इन ड्राई लैट्रिन्स में जाता है तो वहाँ पे ये लिम्ब्रिकॉइड्स एग्स उस इन्फेक्टेड इंसान से बाहर आते हैं, उसकी फेसेस के साथ बाहर आते हैं, तो ज़मीन के साथ लग जाते हैं. वहाँ पे इर्द गिर्द सब्ज़ी होगी उसके साथ लग जाते हैं, या अगर वहाँ से कोई वाटर कैनाल, वाटर स्ट्रीम या वाटर करंट आती है तो वो वाटर भी कंटेमिनेट होता है, ये एग्स उसमें भी चले जाते हैं. सो ड्राई लेट्रिन्स का आजकल हमारी सोसाइटी में होना बहुत ही गलत बात है.
वी शुड क्लोज देम आउट। अगर कहीं पे होगा नेबरहुड में तो मैं उनको बताना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड, आप ये क्लोज डाउन कीजिए, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो कैसे होता है कि जब एक इन्फेक्टेड इंसान जिसके अंदर ये एस्कैरिस लेम्बरिकॉइड्स मौजूद हों, जब वो वहाँ पर एग्स ले करते हैं उसके इंटेस्टाइन्स में, तो जो ही वो फेशियल मैटर अपना रिलीज करता है इनसाइड द लेबोरेटरीज आउटसाइड इन ड्राई लैट्रिन्स, तो उस इंसान इन्फेक्टेड इंसान के फेसेस के साथ ये एग्स बाहर आके वहाँ पे उस ज़मीन को कंटामिनेट करते हैं। वहाँ पे अगर बारिश आई या कोई और वाटर करंट आया तो ये एग्स चले जाते हैं, दूसरे वाटर रिसोर्सेज को भी कंटामिनेट करते हैं। या अगर वहाँ पे कोई बगीचा हो सब्ज़ी का तो सब्ज़ी कोई उगाता है तो वहाँ उस सब्ज़ी पे भी लग जाते हैं। तो ये एक सोर्स बनता है इस सॉइल के ज़रिए, इस वाटर के ज़रिए, इन वेजिटेबल के ज़रिए, फिर ये एग्स चले जाते हैं एक नॉर्मल इंसान में। तो ये है एक इसका ट्रांसमिशन मोड कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। और क्या होता है जब ये वाटर कंटेमिनेट हो गया, जब ये सॉइल कंटेमिनेट हो गया, जब वेजिटेबल्स कंटेमिनेट हो गए, तो अगर कोई ऐसे ही वेजिटेबल उठाता है धोने के बगैर, रॉ इनको खा जाता है, या ये वाटर बॉईल करने के बगैर पीता है, या इस सॉइल को कोई मुंह में भरता है। जैसे कि क्या होता है, बच्चों में एक बुरी आदत होती है, वो इस सॉइल को उठाते हैं, कभी कभी मिट्टी खा जाते हैं, मिट्टी उठाते हैं डालते हैं मुंह में, तो ये सॉइल कंटेमिनेटेड होती है, इन्फेक्शस होती है। तो इस एस्केरियोसिस इसके जो एग्स होते हैं इस सॉइल में लगे होते हैं, तो सीधे चले जाते हैं इस बच्चे के अंदर, तो वहाँ पे ये डिजीज़ पैदा होती है। तो जब सॉइल कंटेमिनेट हुआ, वाटर कंटेमिनेट हुआ, वेजिटेबल्स कंटेमिनेट हुए इन ड्राई लैट्रिन्स की वजह से, तो वहाँ पे जब कोई इंसान, कोई बच्चा इन वेजिटेबल्स के कांटेक्ट में आता है, इस कंटेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आता है, या इस कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ये एग्स उसके अंदर चले जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, विच कंटामिनेट सॉइल, वाटर एंड वेजिटेबल्स, एंड वेन एवर वी ईट वेजिटेबल्स, ड्रिंक वाटर, वी गेट इन्फेक्टेड, एंड मोस्टली द चिल्ड्रन हु ईट सॉइल और क्ले आर इन्फेक्टेड बाय दिस वर्म। यानी कि जो बच्चे मिट्टी उठाते हैं उसको खा जाते हैं, तो एक कंटामिनेटेड सॉइल जो होता है उन बच्चों के अंदर चला जाता है। इस तरह से ये ट्रांसमिशन मूड बनता है कि ड्राई लैट्रिन्स का होना, या इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स का खाना, इन्फेक्टेड पानी का पीना, या इन्फेक्टेड सॉइल को मुंह में भरना, या टच में उसके साथ टच रखना, हाथ से टच करना। तो अगर किसी इंसान में अब हो गया, तो अब हमें देखना है कि अब सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्केरियोसिस। कभी कभी आपसे छोटा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गिव द सिम्टम्स ऑफ एस्केरियोसिस। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एस्केरियोसिस क्या होता है, कैसे होता है, ट्रांसमिशन मोड क्या है, इसके लिए पैथोजन जो है, वर्म जो है, राउंड वर्म, वो कौन सा है रिस्पॉन्सिबल। तो अभी जब किसी इंसान या बच्चे में हो गया एस्केरियोसिस, तो अब आपको देखना है व्हाट आर द सिम्टम्स। सो यहाँ पर मैंने लिखा है, नॉर्मल सी बात है कि जब एक इंसान के अंदर ये एग्स चले गए, तो वहाँ पे ये एस्कैरिस लेम्बरिकॉइड्स जब वहाँ पे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो जब इनकी क्वांटिटी बढ़ती है, इनका नंबर बढ़ता है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस इन्फेक्टेड इंसान के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, गांठ सी बनती, एक बैरियर होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, अंतड़ियों के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, तो फिर आगे वहाँ मटेरियल नहीं चल पाता है, चाहे खाना हो या और कुछ हो। तो मैंने लिखा है कि एस्कैरिस पैरासाइट्स इन्फेक्ट ए पर्सन, देयर occur the obstruction of intestines and thereby cause abdominal discomfort। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इससे क्या होती है, एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि मस्कुलर पेन आता है, इंसान में टेम्परेचर बढ़ सकता है, फीवर आता है। और ये बंदा जिसमें एस्केरियोसिस हुआ
जिसमें ये एस्कैरिस लम्बरिकॉर्डिस ज़्यादा नंबर में आ गए वो एनीमिक बनता है, यानी कि एनीमिया होता है। तो एनीमिया क्या हो गया कि जब ये इसके अंदर होते हैं, ये इसका जो खाना खा जाते हैं, जो ये खाता है ये खाना न्यूट्रिशन इसका, इस पर वही पलते हैं। तो जब इन्होंने इसके खाने का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया तो इसके अंदर जो खून है वो कम बनता है। तो एनीमिक हो गई जब किसी इंसान के अंदर जो नॉर्मल लेवल होती है ब्लड की 12 से 14 पॉइंट्स, कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 14, तो वहाँ पे वो ब्लड लेवल जो होती है वो कम होती है, 7 पॉइंट्स पे आता है बंदा, 6 पॉइंट्स पे आता है। तो उस वक्त ये इंसान एनीमिक होता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, फैटेग होता है, वो काम नहीं कर सकता है, तो ये एनीमिक बनता है। ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना है? ट्रीटमेंट रेगुलरली एट फिक्स्ड इंटरवल्स की ऑलमोस्ट कहते हैं कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हमें एंटी एस्केरियोसिस ट्रीटमेंट ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। एल्बेंडाजोल ये हम बच्चों को देते हैं। तो ट्रीटमेंट है कि हमें एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स लेनी चाहिए जो इनके खिलाफ काम करते हैं, सच एज मेबेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं कि जो हमें बच्चों को भी देना चाहिए और खुद को भी खाना चाहिए आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, यानी कि साल में 4 बार। तो इससे क्या होता है, जो ये एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स राउंड वर्म्स होते हैं ये मर जाते हैं, इंसान बचता है एस्केरोसिस से। तो एक बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम उसमें आ सकती है ऑब्स्ट्रक्शन की या एनीमिया की, ये इससे बच पाता है। तो एक और प्रिवेंटिव मेजर ये हमें करना है कि ड्राई लेट्रिन जो हों उनको बंद करना है, उनको क्लोज डाउन करना है, ड्राई लेट्रिन इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर वेजिटेबल्स खाएं रॉ भी तो पहले उनको बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। अगर पानी पिएं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले बॉयल करें, 5-10 मिनट तक उबाल पे रखें। इसी तरह अगर सॉइल होगी, बच्चों को सॉइल से दूर रखना, बच्चों को बताना है कि ये सॉइल एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप इसको हाथ लगाओगे, मुंह में भरोगे तो आप बीमार हो जाओगे। इसमें छोटे छोटे जरासीम होते हैं, इसमें इन्फेक्शन होता है। तो बच्चों को रोकना है सॉइल को हाथ लगाने से, सॉइल को मुंह में डालने से। तो ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस मेजर्स हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एस्केरियोसिस से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन था, ये टॉपिक था क्लास 12th के लिए। तो आज हमने ये डिजीज़ भी पढ़ी, होप अपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा होगा प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, योर जोलॉजिस्ट सर।